Hello students, welcome to Carefree Education. So students, today we are going to do the exercise of chapter 2, that is daffodils. Okay, let's begin with question number first, that is tick the correct answer. The poet has compared himself to a cloud to show that he is all alone and feeling lonely like a cloud in the sky. When the poet says the daffodils are continuous as stars, he means there are an endless number of daffodils in the valley. Third one, by stating that the daffodils outdid the waves in the dancing, the poet means that daffodil surpassed the waves in their happy dance. Fourth, the poet recalls the memory of dancing daffodils, especially when he is in a thoughtful mood. Okay. B part, that is true false. The poet while wandering chanced to see orange daffodils. No, it is false. The poet felt he saw 10,000 daffodils at a glance. That is true. The poet felt he could not help but feel happy on seeing the daffodils. That is again true. The poet felt he could not help but feel happy on seeing the daffodils. That is true. The poet recalls the daffodils especially when he sinks into his favorite armchair. That is false. The poet, being in a nature poet, experiences bliss amid the nature. That is true. Okay. So let's go to the next question. That is G part. Match the following. Okay, these are the items. बेटा इसमें आइटम्स हैं जो हमको किसके साथ कंपेयर करने हैं, जो हम इसका रेगुलर मीनिंग होता है. ये आइटम्स को किसके कर, जो एवरीडे लाइफ में हम उसको किस मीनिंग के साथ यूज कर सकते हैं. ओके, ऑन क्लाउड 9 वेरी हैप्पी, दिस इज द फर्स्ट वन. द काम बिफोर द स्टॉर्म, second one is a quiet time before a period of unexpected upheaval. Once in a blue moon, what does this mean? Very rarely. Fourth, many moons ago, that is a very long time. In a air, fifth one, that is feeling that something is happening. Out of the woods, that is last, that is out of the danger. Okay, next. Okay, we have to make the sentences in this question by using this items. ये अलग अलग आइटम्स यूज करके इनके मीनिंग को लेकर के क्या बनाना है, हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. तो पहले हम एक एक का देख लेते हैं और उसके बाद सेंटेंसेस बनाएंगे. अ बेड ऑफ रोजेस, व्हाट डज इट मीन? समथिंग वेरी इजी एंड कंफर्टेबल, जो बहुत ज़्यादा आसान हो और कंफर्टेबल हो. बेड ऑफ रोजेस मतलब समथिंग दैट इज इजी एंड कंफर्टेबल. लेट्स लुक इट्स सेंटेंस. स्टे एट अ होटल वॉज अ बेड ऑफ रोजेस. क्या है बेड ऑफ रोजेस का मीनिंग? हमने ऊपर क्या देखा, जो बहुत इजी और कंफर्टेबल हो. तो स्टे एट अ होटल वॉज अ बेड ऑफ रोजेस. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Here it is. Okay, beat about a bush, avoid giving the straightforward answer, मतलब सीधा जवाब नहीं देना. beat about a bush मतलब सीधा जवाब नहीं देना. इसका सेंटेंस क्या है? मीशा हैज़ अ हैबिट ऑफ बीटिंग अबाउट अ बश, मतलब मीशा को क्या आदत है, जल्दी से सही जवाब नहीं देने की, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं देने की, घुमा फिरा के जवाब देने की आदत है. कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग दैट कम्स एज अ कंप्लीट सरप्राइज. बोल्ट फ्रॉम अ ब्लू का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट कम्स एज अ कंप्लीट सरप्राइज, कुछ बहुत अचानक से एज अ सरप्राइज मिल जाए. द बर्थडे पार्टी वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द blue. Next one, that is fourth. Rehan is shrinking violet. Shrinking violet का मतलब क्या होता है? A shy person. Shy person जो बहुत ज़्यादा शर्माता है. Rehan is a shrinking violet and does not socialize much. मतलब रेहान बहुत क्या करता है? shy person है और socialize मतलब लोगों से मिलना कम ही पसंद करता है. उसके बाद go bananas.
गो बनानास का मतलब क्या होता है, गो क्रेजी, मतलब क्रेजी होना, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक में रहना। द फैंस वेंट बनानास ऑन सीइंग देयर फेवरेट स्टार इन अ पर्सन। नेक्स्ट, इट इज़ नेवर अ पीचेस एंड अ क्रीम। पीचेस एंड अ क्रीम का मतलब क्या होता है, सिचुएशन दैट हैज़ नो प्रॉब्लम, मतलब कोई भी सिचुएशन जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज़ नेवर अ पीचेस एंड अ क्रीम सिचुएशन एट अ टाइम ऑफ अ वॉर। वॉर मतलब लड़ाई के टाइम ऐसे कभी सिचुएशन नहीं होती जिसमें कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस ना आए। बेटा आपको ये अगर नोट डाउन करने हैं तो आप ये कर सकते हो। Okay, now coming to the next part, that is I underline the subject in the following sentences. अब इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो। द गर्ल सैट ऑन द ग्राउंड, किसके बारे में बात की जा रही है, गर्ल के बारे में, तो वो क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो लखनऊ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सरोज पास्ट द एंट्रेंस एग्जाम, किसके बारे में बात हो रही है, सरोज के बारे में, सरोज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आफ्टर हैविंग द डिनर अंकित सैट डाउन टू फिनिश हिज होमवर्क, किसके बारे में बात हो रही है, अंकित के बारे में, तो अंकित सब्जेक्ट हो गया। माई सिस्टर एंड आई गो टू मिसेस सेन फॉर म्यूजिक लेसन्स, तो किसके बारे में बात हो रही है, मेरी सिस्टर और मेरे बारे में, तो माई सिस्टर एंड आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। भारत्स ब्रदर इज एन एस्ट्रोनॉट, किसके बारे में बात हो रही है, भारत्स ब्रदर के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में कभी भी जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है हमें, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट तीनों को मार्क करना है। सब्जेक्ट मैंने अभी आपको समझाया, सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट हो जाता है। प्रेडिकेट बाकी जो पार्ट है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का जिसके ऊपर एक्शन किया जाए वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस से समझाती हूँ। द इंडियन टीम वन द वर्ल्ड कप, द इंडियन टीम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वन द वर्ल्ड कप, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। बाकी मैंने आपको बोला सब्जेक्ट के अलावा जितना सेंटेंस में पार्ट बच जाएगा वो पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। उसके बाद अब सब्जेक्ट का एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, वर्ल्ड कप के ऊपर, मतलब सब्जेक्ट किसके बारे में, किसके ऊपर एक्शन हो रहा है, वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप ही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई। अब मैं इनको अलग अलग पेन के साथ आपको एक बार मार्क करके बताती हूँ। द इंडियन टीम क्या हो गया, सब्जेक्ट, पहले हम सारे सेंटेंसेस के सब्जेक्ट मार्क कर लेते हैं। इंडियन टीम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। द टू स्टोरेड हाउस क्या हो गया, स्टोर्ड हाउस, ये भी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। द ओल्ड वुमेन लिव्स इन द हट विथ हर डॉग, द ओल्ड वुमेन क्या हो गया, सब्जेक्ट, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। मान्या सब्जेक्ट हो गया। लीला एंड हर फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो गया। ग्रैंडमा सब्जेक्ट हो गया। अब हम आते हैं प्रेडिकेट पर। ये प्रेडिकेट हो गया। अगेन दिस इज द प्रेडिकेट पार्ट, सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट इज द प्रेडिकेट पार्ट। दिस इज प्रेडिकेट। अब इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्ल्ड कप ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट बिलोंग्स टू मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा के बारे में वो डिस्कस हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट वो हो गया। द ओल्ड वुमेन लिव्स इन अ हट विथ अ डॉग, ये हट ऑब्जेक्ट हो गया। मान्या इज यूजिंग माई मोबाइल फोन ऑब्जेक्ट हो गया। लीला एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द पार्क ऑब्जेक्ट हो गया। ग्रैंडमा वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी मी ऑब्जेक्ट हो गया। आपको समझ में आ गया, रेड पेन वाला क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, येलो पेन वाला प्रेडिकेट और ब्लू पेन वाला हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट डज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन से। ओके, इसका पार्ट कट गया है, वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये तीन मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये के है जिसमें क्या करना है, हमें कुछ आंसर्स देने हैं, इसके आंसर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। द पोइट डिस्क्राइब्स द डोव्स, DOVES, डोव्स एज द सिल्वर फेदर। द हार्वेस्ट माउस हैज सिल्वर क्लॉज एंड आईज, silver claws and eyes. In the water, the fish remains moveless. Okay, done. So this was the exercise part.
If you still have any doubt, you can mention in the comment section.